شہر میں اسموک کی شدت میں کمی نہیں آئی، انتہائی ناقص فضائی معیار میں سانس لینا دشوار۔ صبح سویرے اوسط AQI 530 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک سے آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی شکایات بڑھنے لگیں۔ مزید صورتحال کے بارے میں جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ سہیل بتائیے۔ دیکھیں، حکومت اپنے طور پر اقدامات تو اٹھا رہی ہے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں شاید وہ مطلوبہ حد تک حاصل نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اسموک کی جو شدت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران بھی کچھ اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ DG ماحولیات ظہیر عباس ملک صاحب کے پاس اور ان کے ساتھ موجود ہیں، تو انہی سے جان لیتے ہیں۔ AQI آپ کے سرٹن پلیسز کا لاہور میں خراب ہے۔ اب وہ لاہور میں کیوں خراب ہے؟ AQI میں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ اس میں کچھ لوکل فیکٹرز بھی ہیں، اور اس میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ٹرانس بارڈر فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت مجموعی صورتحال دیکھیں تو ڈھاکہ سے شروع ہو کے لاہور تک، دہلی اس میں شامل ہے، ہریانہ اس میں شامل ہے، اتر پردیش اس میں شامل، ایک بلینکٹ آف فوگ بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک وہ ریجنل فینومینا ہے، اور اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ اس میں جو انڈین سائڈ کے اوپر سٹبل برننگ ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے، ایک وہ فیکٹر ہے۔ اس کے بعد انڈین جو کول فائرڈ پاور پروجیکٹس ہیں اس کا ایک فیکٹر ہے۔ پھر جو ویدر چینجز اس پورے ریجن میں ہوتی ہیں اس کا ایک فیکٹر جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران صورتحال مزید بہتر ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا یہ بھی ہے کہ بارش برس جائے، کیونکہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے بارش کا۔ امید رکھی جانی چاہیے کہ حالات بتدریج بہتر ہوں گے۔ جی شکریہ سہیل۔ آپ کو بتائیں، شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر گاڑیوں کی تعداد بے قابو ہو گئی۔ دھواں بڑھنے سے اسموک کو کنٹرول کرنا بھی جوئے شیر لانے کے برابر۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ میٹروپولیٹن سٹی میں ٹرانسپورٹ سسٹم کی عدم موجودگی، حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ بسیں، ویگنیں، کوسٹرز نہ چلنے سے لوگ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ زین العابدین سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ زین، آگاہ کیجیے۔ اس وقت شہر لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ دھواں بڑھنے سے اسموک کو کنٹرول کرنا بھی اس وقت جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند اور نجی سواریاں بڑھنے سے دھوئیں اور دھند کا جو ملاپ ہے وہ آسان تر ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لاہور اس وقت یہ گرد آلود اسموک کے نشانے پر ہے۔ میٹروپولیٹن سٹی میں ٹرانسپورٹ سسٹم کی عدم موجودگی حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ بسیں، ویگنیں اور کوسٹرز نہ چلنے سے لوگ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت لاہور میں اسموک کی دو وجوہات ہیں جو کہ بنیادی وجوہات جن کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، اور دوسرا جو شہر کی مرکزی شاہراہوں پر یہ جو بائک رکشے چل رہے ہیں ان سے نکلنے والا دھواں بھی اسموک کا سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ رکشوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو شہر کی اہم ترین شاہراہوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکشہ مافیا کا راج ہے۔ گاڑیوں کے علاوہ ٹریکٹر، ٹرالیاں، ڈمپر، ٹرالر تعمیراتی سامان پہنچانے میں سڑکوں پر پھر رہے ہیں، اور یہ مذکورہ گاڑیاں دھوئیں کے علاوہ گرد و غبار پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اداروں کی اس غفلت کی وجہ سے لاہور کے باسیوں کو یہ اسموک جیسی مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اب ٹرانسپورٹ کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو شہر لاہور کے 48 روٹس ہیں جو کہ گزشتہ 6 برسوں سے غیر فعال ہیں۔ شہباز دور اقتدار میں 2017 میں ان روٹس پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد 2018 سے 2023 تک ان گزشتہ 5 برسوں میں 4 حکومتیں آئیں، لیکن کسی کی طرف سے اس پبلک ٹرانسپورٹ کے سسٹم پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس میں بزدار دور اقتدار، اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت، پرویز الہی کا دور اقتدار اور اب نگران حکومت، یہ 4 حکومتیں بھی لاہور کی شاہراہوں پر عام آدمی کی سواری جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو چلانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہیں۔ اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی جامع پالیسی نہیں بنائی گئی جو کہ نجی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ معاہدہ کر کے ان روٹس کو فعال کرے، تاکہ لوگ اپنی بائک اور اپنی گاڑی کا جو استعمال ہے اس کو ترک کرتے ہوئے
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अब तक की सूरत हाल ये है कि लाहौर के जो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स हैं वो तो मुअत्तल हैं, और सिर्फ शहरियों के पास एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, वो मास ट्रांजिट है, जिसमें शाहदरा से लेकर गजूमता तक मेट्रो बस, इसके अलावा अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और फीडर रूट्स के तौर पर स्पीडो बस चल रही है। इसके अलावा इन मास ट्रांजिट तक पहुंचने के लिए भी मुसाफिरों को रिक्शे का सहारा लेना पड़ रहा है। मौजूदा जो निगरान पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से ऐलानात तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान किया गया। इस वक्त लाहौर में 2000 इलेक्ट्रिक बसों की ज़रूरत है जो कि मुसाफिरों की सफरी सहूलियात को पूरा कर सके। इस 2000 बसों के इवज़ सिर्फ 200 बसों का PC1 भेजा गया, लेकिन उसमें भी कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गई और इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने का जो मंसूबा है उसको भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। अब इस सारी ठीक है ज़ैन, ये भी बताइएगा कि सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ियां ज़ाहिरा निकलती हैं, तो स्कूल बसेस के हवाले से कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई अभी तक? शुरू हुआ तो उस वक्त ये अहकामात तो जारी किए गए कि खा वो कमर्शियल गाड़ियां हैं या किसी भी मकसद के लिए गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं, इन तमाम की फिटनेस को चेक किया जाएगा। लेकिन ये शहर लाहौर के जो इदारे हैं उनकी गफलत है और लाहौर के बासियों की ये बदकिस्मती है कि ये बात भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद है। लाहौर शहर में जहां पर तालीमी इदारों की गाड़ियां चल रही हैं वहीं पर बेशतर गाड़ियां हैं जिनको कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बेशतर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है, और जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद हैं उन्होंने इदारों के साथ साजबाज करके और बगैर अपनी गाड़ी को चेक करवाए ये फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इस तरह ये गाड़ी धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां इस वक्त लाहौर की शाहराहों पर दंदनाती फिर रही हैं, और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, महकमा माहौलियात और दीगर इदारे जिनके कंसोर्शियम से ये टीमें बनाई गई हैं वो सिर्फ लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अपने नाके लगाए खुशगपियों में मसरूफ नजर आते हैं। हर महीने के इख्तिताम पर ये कार्रवाई। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। गाड़ियों का जिक्र चला तो लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि इस वक्त महकमा एक्साइज लाहौर में कितनी गाड़ियां, ट्रक, मोटरसाइकिलें वगैरह रजिस्टर्ड हैं जो शहर में स्मोक पैदा करने में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। राहिल, बताइएगा लाहौर में कितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह रजिस्टर्ड हैं? जी, लाहौर जो कभी बागों का शहर कहलाता था इस वक्त फजाई आलूगी की बदतरीन लपेट में है, और इसकी वजह जो है वो शहर लाहौर में बढ़ती हुई व्हीकल्स की तादाद है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं जितनी लाहौर की आबादी है तकरीबन उससे आधा जो है वो इस वक्त लाहौर में व्हीकल्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इस वक्त लाख से ज्यादा गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिलें, रिक्शाएं जो है वो लाहौर की सड़कों पर जो है वो रवा दवा है, जिसकी वजह से फजाई आलूगी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और जो मेट्रो साइज का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है वो 27,000 से ज्यादा बसें हैं, 3,500 से ज्यादा एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, 3,000 से ज्यादा ट्रेन जो है वो मेट्रो साइज में रजिस्टर्ड है। इसी तरह डबल कैबिन गाड़ी जो है वो 7,000 से ज्यादा शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं, 29,000 से ज्यादा मिनी बसें हैं, 52,000 के करीब पिकअप जो है वो शामिल है। रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 12,91,000 तक जो है वो पहुंच चुकी है। ट्रक जो है वो 61,000 तक जो है वो रजिस्टर्ड है, 45 लाख से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, 11,000 से ज्यादा टैक्सी और 1 लाख तकरीबन 65,000 से ज्यादा जो है वो रिक्शे शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो है ये व्हीकल जो है वो लाहौर में रजिस्टर्ड है। ये वजह है कि शहर लाहौर में की जो फजाई आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके चलने से जो एक मखसूस किस्म का खतरनाक केमिकल जो है वो पैदा होता है, जो फजाई आलूदगी में जो है वो अब बढ़ने का सबब बन रहा है। हुकूमत की जानिब से हमने ये तो देखा है कि वो पॉलिसीज बना देते हैं कि चीजें, दुकानें बंद कराएं, स्कूल बंद कराएं, लेकिन जो असल वजह बन रही है स्मोकिंग को, ये गाड़ियां व्हीकल, इनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ सकी। बहुत सी ऐसी गाड़ियां, खुसूसन रिक्शे और पिकअप ऐसी हैं जिनकी फिटनेस जो है वो नहीं की जाती, वो सारा दिन शहर की सड़कों पर जो है वो धुआं छोड़ते फिरते हैं और उनको रोकने वाला या उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो हुकूमत की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर लायामत सामने नहीं आया कि जो गाड़ियां शहर की सड़कों पर रवान दवा है उनका बाकायदा तौर पर फिटनेस सर्टिफिकेट उनको दिया जाए कि उनके इंजन जो है वो किस हद तक फिट है, वो क्यों धुआं जो है वो छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इकदाम जो है वो सख्त किया जाए। लेकिन ऐसी हुकूमती अमली को जो है वो
جو اس وقت स्मोक की सूरत हाल में जो है वो नजर नहीं आ रही। ये वजह कि लाहौर का शुमार जो है वो दुनिया के बदतरीन फजाई आलूदगी के शहरों में जो है वो हो रहा है, और उसकी तादाद और उससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना कर ले, नाक की बीमारियां और दीगर बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो मैं शायद कि हुकाम का कहना ये है कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं, हमारा काम तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना है, वो हम करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा पॉलिसी बनाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गाड़ियों की फिटनेस लाजमी तौर पर चेक की जाए ताकि ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि तकरीबन 61 लाख से ज्यादा जो व्हीकल हैं लाहौर की सड़कों पर जो है वो रवां दवा है। शुक्रिया राहिल। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोक से बचाव के लिए मास्क कितना कारआमद, तिबी माहिरीन की मुतज़ाद आराज सामने आ गई। बास माहिरीन मास्क से 80% बचाव और बास सिर्फ 20% बचाव का दावा करने लगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक चीन में स्मोक के खिलाफ बनाए जाने वाले मास्क गीले होते हैं। स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन मौजूद है। दूसरी जानिब अहले लाहौर ने मास्क पहनने के हुकूमती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइए, क्या ये सच है कि स्मोक से बचाव के लिए मास्क कारआमद नहीं, और क्या इस बारे किसी मुस्तनद अथॉरिटी या डॉक्टर की राय मौजूद है कि अगर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह का मास्क इस्तेमाल किया जाए? जी बिल्कुल जी, तिबी माहिरीन जो है वो मौजूदा जो स्मोक के केमिकल हैं इससे सर्जिकल मास्क पर जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि सर्जिकल मास्क भी फजा में मौजूद जो खतरनाक ज़रात हैं इनको रोकने में ताहाल जो है वो नाकाम है, और तकरीबन 20% तक जो है वो पेशेंट जो है उसको अकोमोडेट करता है। जिसने ये मास्क पहना हो उसको तकरीबन इसके 20% जो मुस्बत असरात जो है वो मिल सकते हैं, जबकि 80% असरात यही हैं कि ये स्मोक के केमिकल को रोकने में नाकाम है। माहिरीन के मुताबिक चीन में स्मोक के खिलाफ जो बनाए जाने वाले मास्क हैं वो गीले होते हैं, जिसकी वजह से स्मोक की रोकथाम में जो है वो मदद मिलती है। आम मास्क की बजाय सूती या तौलिया नुमा कपड़े को गीला करके स्मोक से बचा जा सकता है, और मौजूदा जो मास्क हैं उसमें ये खसूसियत मौजूद नहीं है। स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जोन जैसे जो केमिकल हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको आम मास्क के जरिए जो है वो रोकना नामुमकिन है, और ये बारिश के पानी या के आम कपड़े के पानी को गीला करके इससे बचा जा सकता है। इस तरह के केमिकल को रोकने के लिए सूती कपड़ा गीला करके इस्तेमाल करना जो है वो नहायत मुफीद करार दिया है। सर्विसेज हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अयूब मिर्जा जो हैं वो इससे मुतमिन नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह के केमिकल को रोकने के लिए सिर्फ सूती कपड़े को गीला करके इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानब अहले लाहौर ने मास्क पहनने के हुकूमती जो अहकामात हैं उसको भी हवा में उड़ा रखा है, जो 20% इसके मुस्बत असरात हैं उनसे भी जो है वो लाहौर के बासी जो हैं वो भागे हुए हैं। शहरियों ने सूती कपड़ा तो दूर की बात, आम मास्क को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। सज्जाद, जैसा कि आपने बताया कि चीन में गीला मास्क इस्तेमाल होता है, क्या इस हवाले से मार्केट में गीला मास्क मौजूद है जिसे सार्फिन खरीद सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल इनके पास तो ये सोच भी नहीं होगी, क्योंकि मास्क बनाने के लिए तिब्बी माहिरीन की राय नहीं ली जाती और ना ही इसको किसी केमिकल लेबॉर्टरी के अंदर जो है वो चेक करवाया जाता है। डॉक्टर अयूब मिर्जा का कहना है कि पहले से बीमार और जो मोहम्मद अफराद हैं उनमें स्मोक के दिनों में खास जो है एहतियात बहुत जरूरी है। सांस, दिल और दमे के मरीज जो हैं वो खिड़कियों पर, घर की खिड़कियों पर जो है वो गीला कपड़ा, सूती कपड़ा लटका दें ताकि स्मोक के असरात से जो है वो बचा जा सके। और मौजूदा सूरत-ए-हाल जो नजर आ रही है, हुकूमत जो है वो मसनूई बारिश बरसाने जा रही है, लेकिन खुदा की कुदरत के अगर बारिश बरस भी जाती है तो 2 से 3 दिन इसके जो हैं वो मुस्बत असरात मतलब होंगे, लेकिन जितनी तेजी और तादाद के साथ लाहौर के अंदर ठीक है सज्जाद हुसैन, आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। शहर में स्मोक की अबतर सूरत हाल, ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक। मार्केटें दोपहर 3 बजे खोलने की इजाज़त। डीसी लाहौर राफिया हैदर कहती है कि माल रोड एतवार के रोज़ ट्रैफिक के लिए बंद होगा, सिर्फ साइकिलिस्ट को आने की इजाज़त होगी। एतवार को 5 बजे के बाद माल रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा।
عمران اکبر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی عمران آگاہ کیجیے. جی بالکل، چونکہ سموک کا راج ہے اور سموک کا جو اس وقت شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہر بھر میں جو اسکول، کالجز اور مارکیٹس بند رکھنے کا حکم دیا ہے. سموک کے تدارک کے لیے ضلع انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ضلع انتظامیہ کس طرح سے حکمت عملی پر SOPs جو ہے لاگو کر رہی ہے؟ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے سموک کا راج برقرار ہے، تو یہ تمام جو SOPs جو ہیں، دکانیں بند کرنا، کالج اسکول بند کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کے آگے کیسی کون سی ایسی چیز ہے جس سے سموک جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ دیکھیے اس کے اندر ڈفرینٹ انٹروینشنس تو آلریڈی کی جا رہی تھی LWMC کی طرف سے، ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی جہاں جہاں ورکنگ ہو رہی ہے کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر، واٹر اسپرنکلنگ اور یہ ساری چیزیں. لیکن کیونکہ اس وقت AQI باہر آ پڑ رہا ہے اسٹیبل بڑھنے کی وجہ سے بھی، اکراس بارڈر اور ارد گرد جو لاہور کے ڈسٹرکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی، تو اس میں پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ انٹروینشن ہے ان پلیس کے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ جو ویکینڈ ہے اس کے اوپر منیمم ٹریفک فلو کو انشور کروایا جائے، تاکہ جو پیک آورس جس وقت AQI بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت ایٹ لیسٹ آؤٹ پٹ ٹریفک کی حد تک منیمل ہو جائے. اسی لیے ورکنگ کی گئی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سیٹرڈے سنڈے کو عموماً بند ہی ہوتے ہیں، فرائیڈے کو اس کو ایڈیشنل ایڈ آن کیا گیا. اسی طرح آفیسز کو 3 بجے تک، مارکیٹس کو 3 بجے تک بند رکھنا، وہ بھی اسی لیے ہے کہ ٹریفک کو اسٹیگر کیا جائے اور صبح ایٹ لیسٹ جہاں پیک ٹائم ہوتا ہے جس وقت AQI بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت منیمم فلو پائے. بالکل جی، آپ نے DC لاہور کی تفصیل گفتگو سنی کہ شہر میں سموک کے تدارک کے لیے تمام ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. حکومت اپنی سطح پر جو ہے رائٹ محبوب کے ہمراہ، اور آج بھی مارکیٹ جو ہیں وہ 3 بجے کے بعد کھلیں گی اور اسکول اور کالجز بند رہیں گے، جبکہ سنڈے والے دن مار روڈ، تاریخی روڈ پر جو ہے وہ سائیکلنگ ایونٹس کروائے جائیں گے اور شام 5 بجے کے بعد ٹرانسپورٹیشن کو چلنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ. اسموک سے نمٹنے کے لیے آج سمارٹ لاک ڈاؤن، مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کھولنے کی اجازت. اس فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے جانتے ہیں زاہد عابد سے جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں. جی زاہد بتائیے. جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے فضائی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کی مکمل بندش کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی جائے گی اور اوقات کار محدود کیے جائیں گے، جس کے مطابق تمام مارکیٹیں سپہر 3 بجے سے پہلے نہیں کھل سکیں گی. اس وقت بھی ہم مال روڈ پر موجود ہیں اور مال روڈ کے دونوں طرف کی جو مارکیٹس ہیں جو کہ کافی مصروف اور بڑی مارکیٹیں خیال کی جاتی ہیں وہ مکمل طور پر بند نظر آتی ہیں اور 3 بجے سے پہلے یہاں پر کاروبار شروع نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں سڑکوں پر ٹریفک کم سے کم رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ کم سے کم موومنٹ کریں اور زیادہ جو سڑکوں کی آلودگی ہے، سڑکوں کی فضائی آلودگی پھیل رہی ہے اس سے کسی حد تک بچا جا سکے. تاہم دکانوں کے باہر لوگ کسی حد تک موجود ہیں لیکن دکانیں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن نظر آتی ہیں اور حکومت کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو جو واضح ہدایات ہے کہ کیبنٹ کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے یا مارکیٹوں کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے اس پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جا سکے. تو ان فیصلوں پر جمعہ اور ہفتہ کو مارکیٹیں کے اوقات کار جو ہیں محدود کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر ہفتے کے روز جو ہیں وہاں پر مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلیں گی اور اتوار کو مارکیٹس بند رکھی جائیں گی. تاہم اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مارکیٹس 3 بجے سے پہلے نہیں کھل رہی. اکا دکا دکانیں جو کہ کہیں گلی محلوں میں ہیں ان پر کہیں کوئی دکانیں کھلی نظر آتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند نظر آ رہی ہیں اور وہاں پر کسی قسم کا لین دین یا کاروبار نہیں ہو رہا. آپ کا شکریہ زاہد. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا داتا دربار آئی ہاسپٹل کا دورہ. محسن نقوی نے گائنی وارڈ، آئی وارڈ سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا. ہسپتال کا MS تھا، نہ ہی کوئی ڈاکٹر. گیٹ پر گارڈ غائب، نرسیں سو رہی تھیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر برہم. MS کو عہدے سے ہٹا دیا. ہاسپٹل کا انتظام محکمہ اوقاف سے واپس لے کر فوری طور پر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا داتا دربار آئی ہاسپٹل کا دورہ. محسن نقوی نے گائنی وارڈ، آئی وارڈ سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا. ہسپتال کا MS تھا، نہ ہی کوئی ڈاکٹر. گیٹ پر گارڈ غائب، نرسیں سو رہی تھیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر برہم. MS کو عہدے سے ہٹا دیا.
आपको बताएं, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस, मरियम औरंगजेब के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत ने तलब कर लिया। जावेद लतीफ़ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिए। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में मरियम औरंगजेब को दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तलब कर लिया है। अदालत ने मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को आइंदा 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के गुज़िश्ता समाअत पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जबकि जावेद लतीफ आज अदालत में पेश हुए। जावेद लतीफ के वकील ने अदालत की इस्तदा की कि जावेद लतीफ अदालत के सामने सरेंडर कर चुके हैं, अब अदालत इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दे, जिस पर अदालत ने मियां जावेद लतीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए मरियम औरंगजेब को दोबारा जो है वो आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हिलाकत का केस, सर्विसेज हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग की वजह से मुलजिम अफनान शफकत का टेस्ट न हो सका। पुलिस टीम मुलजिम अफनान शफकत को हड्डियों के टेस्ट के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से पुलिस को दोनों टेस्ट करवाने के लिए ताहाल वक्त न मिल सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिए इस बारे। आज बिल्कुल डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का जो मामला है, सर्विस अस्पताल में रिवैम्पिंग की वजह से अफान शफकत का टेस्ट ना हो सका, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पुलिस टीम अफान शफकत को हड्डियों के टेस्ट के लिए सर्विस अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों की जानिब से पुलिस को दोबारा अफान शफकत को लाने का कहा गया है। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि पुलिस टीम ने अफान शफकत के पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक मेडिकल टेस्ट के लिए जो है वो डॉक्टर जमा करा दिए हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से पुलिस को दोनों टेस्टों को कराने के लिए ताहाल वक्त नहीं मिल सका है। मुद्दई जो है उनकी जानिब से मुकदमे के बयान के लिए जो है वो जो है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन उसको खुद जो है सुनेंगे, और मुद्दई मुकदमा के बयान की रोशनी में पुलिस ने अफान शफकत के वालिद का कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशन भी हासिल कर ली है। अफान शफकत के वालिद की डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात अभी तक ना हो सकी है। अफान शफकत का वालिद भी केस में नामजद शामिल तफ्तीश भी हो चुका है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर खुद अफान के वालिद से तफ्तीश करेंगे। लोकेशन की मदद से अफान के वालिद के वक़ुआ पर मौजूदगी का इल्म हुआ है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ। जी, आपका शुक्रिया मुजाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। स्कूलों का नॉन सैलरी बजट खत्म होने हुए 2 माह हो गए। फंड्स न होने से बिलों की अदायगी और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात। स्कूलों को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा ख़जाना से 5 अरब के फंड्स मिलते ही फराहम किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिए। ये स्कूलों को रोजमर्रा के अखराजात, बिलों की अदायगी और जो स्कूलों में छोटी मोटी जो मरम्मत करवानी होती है उसके लिए नॉन सैलरी बजट दिया जाता है, लेकिन 2 माह हो गए हैं जो नॉन सैलरी बजट स्कूलों को नहीं दिया गया। 48,000 स्कूलों के सरबराह जो हैं इस वक्त परेशानी का शिकार है, क्योंकि उनके पास बिलों की अदायगी और जो तामीर और मरम्मत है ये इसके लिए पैसे नहीं हैं। स्कूल एजुकेशन हर साल महकमा स्कूल एजुकेशन हर साल स्कूलों को रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए 16 अरब रुपए के फंड जारी करता है, और हर 4 माह बाद जो है ये 5 अरब रुपए जारी किए जाते हैं। लेकिन 2 माह गुजरने के बाद भी इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड जारी नहीं किए, और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि अभी महकमा खजाना की जानिब से फंड्स नहीं मिले। इस हवाले से दरख्वास्त की गई है महकमा खजाना को, जैसे ही ये 5 अरब से ज्यादा के फंड्स मिलते हैं तो स्कूलों को फराहम कर दिए जाएंगे। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शेराकोट थाने का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। मोहसिन नकवी का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले 11 नौजवानों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिहा करने का हुक्म। फ्रंट डेस्क का अमला गायब, इंटरनेट और कंप्यूटर्स बंद पाए गए।
DIG ऑपरेशंस को फ़ोन फ्रंट डेस्क के लिए मुतबादिल डिवाइस लेने की हिदायत जारी की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शेराकोट थाने का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। मोहसिन नकवी का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले 11 नौजवानों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिहा करने का हुक्म सामने आया। फ्रंट डेस्क का अमला गायब, इंटरनेट और कंप्यूटर बंद पाए गए। DIG ऑपरेशंस को फ़ोन किया, फ्रंट डेस्क के लिए मुतबादिल डिवाइस लेने की हिदायत भी जारी की। खबर यह है, ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद स्मोक तजावुज़ात की कार्रवाइयाँ। 16 अहाते सरबा मोहर, 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। 3 शीशा कैफ़े सरबा मोहर, पुलिस ने सामान कब्जे में ले लिया। AC मॉडल टाउन साहबजादा, AC कैंट और AC ने दीगर महकमों के हमरा जौहर टाउन में मुश्तरका ऑपरेशन किया। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल स्मोक का मामला है और इसी सिलसिले में जो है हाई कोर्ट का हुक्म है, जिस पर जो है AC मॉडल टाउन, AC रायगंज और इसके साथ साथ AC कैंट ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। जो टाउन मेन बुलेवार्ड पर जो है 16 अहाते जो हैं वो उनको सील किया गया है और बाकायदा तौर पर सीलिंग के बाद जो है तमाम जो कैफे थे उनको बाकायदा जो है वो अब नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जुल्म साहब की इंतजामिया की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जी शुक्रिया इमरान। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 26,000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 5300 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। जमा बरस सूबे के तमाम अजला में मजमूई तौर पर कम उम्र ड्राइवर्स के 88,000 से ज़ायद चालान किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। 12 रोज में 4373 मुकदमा दर्ज करके 70 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया है। बगैर लाइसेंस 7 रोज में 3234 ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1247 जबकि बगैर लाइसेंस ड्राइवर मोटरसाइकिल चलाने पर 1991 मुकदमा दर्ज किए गए। शहर में एक्सक्लूशन जो है वो पोश इलाकों में 190 मकामात पर खुसूसी नाकाजात ट्रैफिक की तरफ से लगाए गए हैं। इस वाले से सिटी लाहौर का कहना है कि शहरी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के असूल को यकीनी बनाएं। सिटी लाहौर का मजीद कहना है कि शहर में 30 लाइसेंस दफ्तर जो हैं वो काम कर रहे हैं। 10 मोबाइल वैन और तमाम सिविल मराकज़ जो हैं वो 24 घंटे उनको खोला गया है। इनका मजीद कहना है कि कम उम्र बच्चों के साथ इन्हें गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सिटी लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकिल के खुद जिम्मेदार हैं। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि क्रिमिनल कार्ड बनने से बच्चों का नुकसान होगा, खासतौर पर सरकारी नौकरी और वीज़े के हसूल में मुश्किलात उनको पेश आएंगी। मुदस्सिर ये बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5300 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो क्या इन बच्चों को हवालात में बंद किया जाता है या जेल भेज दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, इन बच्चों को जो है वो हवालात में बंद किया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन बच्चों का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है और CRO रिकॉर्ड बन जाता है। और जब ये बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल करके मुदस्सिर ये भी बताइए कि इन बच्चों पर किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? तेज ड्राइविंग 279 जो है वो दफात लगाई जा रही है, जो कि तेज और रैश ड्राइविंग है कि तेज रफ्तारी से ये ड्राइविंग कर रहे थे, वो दफात लगाकर इन बच्चों को जो है वो हवालात में बंद किया जाता है। और उसके बाद जो है वो जमानत। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं सब्जी, फल, ब्रायलर सबकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 494 रुपये हो गई। प्याज 150, टमाटर 160, लहसुन 800, अदरक 780 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों के, फलों के और पोल्ट्री मसनूआत के, तो उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया।
प्याज आज 2 रुपये महंगा करके सरकारी रेल इसमें 120 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मिक्स दर्जे का प्याज जो है 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक। मजमूई तौर पर 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि ब्रायलर की कीमत में भी आज इजाफा हुआ है। 7 रुपये महंगा करके 494 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है ब्रायलर गोश्त, जो कि एक बार फिर 500 रुपये की सतह पर पहुँच चुका है। इसी तरह अंडे जो हैं 331 रुपये फ़ी दर्जन तक मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 340 से 350 रुपये दर्जन तक अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी यही है कि सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तमाम सब्जियां फल जो हैं वो सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सार्फिन मौजूद हैं जो कि सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में ख़रीदारी के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, जो एक आम बंदा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, सैलरी पर्सन के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, एक जो दुकानदार है वो तो अपने मार्जिन बढ़ा लेता है जैसे ही महंगाई होती है, ठीक है, लेकिन सैलरीज वाले जो पर्सन है ना, वो सैलरी साल में एक बार बढ़नी है, लेकिन ये हफ्ते में 2 बार रेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे ज़रा नज़रसानी करें। ये आप बताइएगा कि आप क्या क्या लेने आए हैं और क्या रेट की सूरत है? हालात ये हैं कि जो चीज़ आज लेते हैं वो आइंदा लेंगे तो उसका रेट अजीब सी सूरत हाल में बढ़ा हुआ होता है। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो हुक्मरान हैं गाफिल हैं और इनके एक्शन लेने से भी कोई असर नहीं है। दुकानदार तगड़े हैं, यहाँ मार्केटें तगड़ी हैं, हुकूमत जो है, हुकूमत का जो अमल कोई नहीं है इसके ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पे हुकूमती रेट या जो सरकारी रेल लिस्ट हैं उन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। सरकारी रेल लिस्टों में कीमतों में इजाफे के बावजूद मंडियों में और परचून मार्केटों के जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से उन पर अमल दरामद भी नहीं किया जाता और शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। मार्केट की अपनी कीमतें हैं, सरकारी रेल लिस्ट की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी हजूरी बाग बादशाही मस्जिद में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारे सूबाई वजीर औकाफ बरादर अजीज जनाब ताहिर रजा बुखारी साहिब और मेरे भाई भी, दोस्त भी, अजीज भी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहिब, मोहतरम जनाब सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उलमा, मशाइख, पादरी साहिबान, बिशप साहिबान, पंडित साहिबान, हमारे सिख बरादरी के कायदीन, आज का ये प्रोग्राम तारीखी बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए में हो रहा है। जहां एक तरफ बादशाही मस्जिद है, वहां एक तरफ अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह भी यहां पर आराम फरमा रहे हैं। इसके बाजू में दीगर मज़ाहिब के मराकिज़ मौजूद हैं। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम और पाकिस्तान दोनों ही लकुम दीनुकुम वलिय दीन के कुरान के इस हुक्म के ताबे हैं कि हर किसी को अपने अपने दीन के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने मसलक के मुताबिक जीने का और रहने का हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये आईने पाकिस्तान जो आपके और मेरे बड़ों ने बनाया था, ये आईने पाकिस्तान, यार ये जरा आप भाई मेरे आवाज मेरी सादा ही रहने दो। ये निगरान वफाकी वज़ीर अनीक अहमद हजूरी बाग बादशाही मस्जिद में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, बात मेरी है। अल्लाह फरमा रहा है, कुरान करीम में रख दी गई है बात, यानी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। बात मेरी है, ऐ मेरे महबूब वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचा दीजिए। मुखातबत किससे हो रही है? अहले किताब से। अल्लाहु अकबर। कि जो चीजें हमारी मुश्तरक हैं, आओ उन पे इत्तेफाक करो, कॉमन ग्राउंड्स ढूंढो। ये पैगाम हमारा दीन हमें दे रहा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। ये अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है। अभी लक़द कर्रमना बनी आदम का जिक्र हुआ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रीन ने फरमाया, हाँ हमने तकरीम दी
किसे? इस इंसान को कि जिसको अल्लाह ताला इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा बयान कर रहा है कुरान करीम में। मोहतरम हाजरीन, बहुत अच्छा पैगाम यहां से गया। अब्दुल हबीब आदाब साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरा भाई बैरिस्टर असफर अली नासिर, ये दिन और रात काम कर रहे हैं पंजाब में, हम काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरी उम्मत की तरफ जाती है। ये जो बादशाही मस्जिद के इन मीनारों के नीचे बैठकर हम ये बात कर रहे हैं, सामने हकीमुल उम्मत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने अभी लक़द करना बनी आदम की बात की। इकबाल क्या फरमाते हैं कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। तो इंसान का उरूज अंजुम सहमे जाते हैं। इकबाल तो यहां तक कह देते हैं, बल्कि वो हदीस कुदसी, कि जब बंदा मेरी तरफ आता है, चल कर आता है, तो मैं दौड़ के जाता हूं, और एक वक्त ऐसा आता है कि मैं बंदे का हाथ बन जाता हूं, मैं वो आंख बन जाता हूं जिससे वो बंदा